Hello students. I hope you have seen the last video, and now we are starting with the next part. In the last video we were talking about the relationship between the Hindus and the Muslims. I was just giving you a brief outlook that the Britishers were very much successful in their ideas and in their concept of divide and rule. They have very smartly and very sharply divided the Hindus with the Muslims, because one of their major fantasies was to रूल इंडिया. बिकॉज यहाँ पे एक छोटी सी बात याद आ रही है. आई जस्ट इट केम टू माई माइंड. आई वॉन्टेड टू शेयर इट दैट इंडिया को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था. द गोल्डन बर्ड दैट वॉज इंडिया. एंड all over the world the traders were there, the people who were there, they all always wanted to come and trade in India. Trading in India was like a dream for the majority of the people who were there all over the world. Britishers were very much successful in that. Come here, but then they were able to, they were fighting the Indians. Now what we are talking today is the reasons of the separation of Hindus and Muslims. Lot of communal clashes were there, lot of riots were there. I stopped here yesterday. Now we move further कि इतनी ज़्यादा टेंशन जो थी, the real tension that existed between the Hindus and the Muslims, वो क्यों हो रही थी? हर एक दंगा जो हो रहा था, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितने भी दंगे हो रहे थे, somewhere and somehow it was affecting the relationship between the Hindus and the Muslims. And फ़ायदा किसका हो रहा था? Who were the people who were being benefited? Yes, definitely it was the Britishers. Now every time fighting, because what happened that the Indians could understand, कुछ जो educated थे, उनको ब्रिटिश मोटिव समझ में आ रहा था. ये आपस में नेगोशिएट करना चाह रहे थे. इतनी फाइटिंग हो रही थी, बट समवेयर दे वांटेड कि फाइटिंग शुड स्टॉप. सम ऑफ देम वेर ट्राइंग टू नेगोशिएट ऑल्सो. नेगोशिएट मतलब बातचीत से प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते. एंड 27 में इट अपीयर दैट सच अ यूनिटी कुड बी फोर्ज्ड. दे कुड बी वेरी मच यूनाइटेड करनी चाहिए. इम्पॉर्टेंट किस बात पे लड़ाई हो रही थी? मेनली द पॉइंट दैट वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम वाज द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन फ्यूचर असेंबलीज दैट वेर टू बी इलेक्टेड. मतलब आगे, आई मीन इन इंडिया ब्रिटिशर्स वेर प्लानिंग टू होल्ड इलेक्शंस एंड मुस्लिम्स वांटेड ऑल द टॉप मोस्ट पोजिशंस. मतलब जो पोर्टफोलियोज होता है ना, लाइक डिफेंस मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज इन देयर ओन हैंड्स. तो मुस्लिम्स वे आर फीलिंग कि ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर्स, इफ इट गोज इन द हैंड्स ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस में अगर एमिनेंट लीडर्स के हाथ में ही सारा पावर चला जाएगा, वेयर विल द मुस्लिम्स गो? यहाँ पे तो अभी ऑलरेडी मुस्लिम लीग में वन ऑफ द वेरी एमिनेंट leaders who was coming up and who was holding who was guiding the Muslims towards the national movement was Jinnah. You know it very well. Sorry. And he wanted to give up the demands of the separate electorates. He said कि ठीक है, अलग से सेपरेट एक आइडिया नहीं बनाते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं करते हैं. अगर मुस्लिम्स को ये कह दें कि
सीट्स मिलेंगे सेंट्रल असेंबली में. मीन्स सर्टेन प्लेसेस Muslims would be given extra advantage, and Muslims demands would be accepted. Especially where there were Muslim dominated provinces. Now which were these Muslim dominated provinces? Bengal and Punjab. पंजाब में पता है अभी जो पंजाब हमारे पास है, the Punjab that we have today, in the olden times, the northwest frontier province, all this Peshawar and all, ये जितना भी था ना, लाहौर, it was all included in पंजाब. तो ये उस समय का पंजाब है. अभी जो कि आधा बट गया है, आधा हमारे पास रह गया, आधा मुस्लिम पाकिस्तान के पास चला गया है. एट दैट टाइम दे सेट कि इन सब प्रोविंसेस में जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, ओनली मुस्लिम कैंडिडेट्स शुड बी गिवन द राइट टू स्टैंड इन द इलेक्शंस. नेगोशिएशंस बहुत करने की कोशिश की गई, मुस्लिम्स को मनाने की कोशिश की गई. Negotiations were there over the question of representation. How much seats would be given, and what would be the mode of political powers that would be given to the Muslims. इसके ऊपर काफ़ी सारी discussions हो रही थी. Then there was because Gandhi ji understood that Britishers were power playing and Britishers were trying to separate the Hindus from the Muslims. So he kept an all India, all parties conference 1928 में. He called all the parties and he told them कि आपस में बैठ के हल निकालो, try to solve the problem, sit together and don't fight, because Britishers were continuously facing Britishers were benefited because of the losses, because of our fights. So M.R. Jaikar of Hindu Mahasabha opposed efforts at compromise. Now what happened? Why Congress and Muslim League was continuously fighting? Muslims wanted all the power in their hands, political power I am talking about. And Congress said कि all the struggle we have, सबसे ज़्यादा हमने साथ में मिलके काम किया है, लेकिन अभी लास्ट में सारा पावर अगर इनके हाथ में दे देंगे तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट द कांग्रेस लीडर्स के साथ भी तो जस्टिस होना चाहिए, द पीपल हु हैव बीन वेरी एक्टिव इन द नेशनल मूवमेंट. So what happened that when the compromise was being talked about, जब ये बात हुई कि they should come to a compromise, they should find out a solution, तो M.R. Jaikar of the Hindu Mahasabha के one of the very eminent leaders was M.R. Jaikar. He said कि कोई compromise नहीं करना है, एक इनकी डिमांड मान लेंगे तो इनकी डिमांड्स बढ़ती रहेंगी. Means the Muslim League I'm talking about. So when the civil disobedience movement started na 1930 में, तो there was an atmosphere of suspicion and distrust. Hindus and Muslims जो है वो कोई भी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता था. Everybody was continuously having a feeling of distrust and they did not want to cooperate with each other. So this was one of the major reasons of differences and conflicts. तो क्या हुआ, कांग्रेस से अलग होके मुस्लिम्स कुड नॉट रेस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर यूनाइटेड स्ट्रगल. कांग्रेस से अलग तो हो गए, मुस्लिम लीग सेपरेटेड देमसेल्व्स, but they did not want a united struggle. They have made up their mind that they are not going to support Congress anymore. Now try to understand one thing. Muslim leaders, intellectuals means all जो पढ़े लिखे थे, express their concern about the status of Muslims as a minority within India. Now just try to understand, ये जो भी डिमांड्स रख रहे थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम लीग, वॉट एवर डिमांड्स दे वर पुटिंग अप, कांग्रेस वॉज रिजेक्टिंग इट. तो उन्होंने कहा कि दे वर फीलिंग सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट. देखो यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, एक दूसरे के ऊपर शक करते थे और कोई किसी पे भी विश्वास नहीं करता था. दे फेल्ट कि इफ़ अगर इसकी बात मान लेंगे तो ये आगे और डिमांड्स पुटअप करेंगे एंड अलग तरीके से हमको बात मनवाने की कोशिश करेंगे. तो दैट्स वाई मुस्लिम्स फेल्ट एलिनेटेड
एंड उनको लग रहा था कि कांग्रेस मेजॉरिटी होती जा रही है एंड मुस्लिम लीग माइनॉरिटी। तो उनको लगा कि उनका कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब एज अ माइनॉरिटी वो लोग बहुत कम नंबर में हैं, कांग्रेस के सारे लोग जो है वो मेजॉरिटी में हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। सो अ टाइम विल कम व्हेन द मुस्लिम्स विल नॉट गेट अ प्रॉपर शेयर इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या, they separate themselves. Now they said कि they did not want to be a part. तो अभी try to understand children, this is a very important part. And here I would like to say one thing, that the limits, these were the major limits of civil disobedience. ठीक है, CDM, I'm sorry, लिमिट्स। अभी लिमिट्स में हमने जो है वो हमने 3 लिमिट्स पढ़े, लिमिट्स ऑफ CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ जगह कम है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप बोर्ड्स में भी आप जाओ तो आप यही लिख दो CDM, डोंट राइट दिस, आई एम जस्ट यूजिंग इट द शॉर्ट फॉर्म बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस। सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड सबसाइडिंग। यहाँ से क्या हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो ग्रेजुअली एंड स्लोली ख़त्म होने लग, ख़त्म हुआ। बिकॉज ये आप देख रहे हो पहला कहाँ से शुरू किया हमने, वी स्टार्टेड विथ हरिजन। ठीक है, इसमें सम पॉइंट्स आर देयर दैट यू नीड टू रिमेंबर। एक तो आपको ये रिमेंबर करना है हरिजन, ओके। दूसरा क्या था, whenever you mention about the limits you have to mention about the Pune Pact। ठीक है, Pune Pact। थर्ड वन इज द, दो हमने बता दिया, तीसरा वाला क्या था, थर्ड इज द मुस्लिम लीग एंड इट्स पॉलिसीज, मुस्लिम लीग। तो अभी it is very frequently asked question for 3 marks and 5 marks, limits। इसको आप प्रिपेयर कर लेना चिल्ड्रन, यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स इन दिस टॉपिक। प्लीज रिमेंबर एंड प्लीज मेंशन 5 पॉइंट्स बना लेना, तो 3 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हो। दैट्स वाई लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस यू नीड टू मेंशन इट इन डिटेल। हाउ द, अच्छा इसमें एक चीज़ और आपको मेंशन करना है, द राइट्स दैट हैड टेकन प्लेस, बहुत ज़्यादा जो दंगे हो रहे थे उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताना है। गॉट इट? नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स दैट यू नीड टू डू। पता नहीं क्लियर है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये एक स्लाइड बनाया था, एक पिक्चर बनाया था। कीप योर बुक विथ, आप अपनी बुक को अपने पास रखना और उसके बाद आप इसको देखना तो आपको समझ में आएगा। ओके, मोहम्मद इकबाल ना, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। तो उन्होंने क्या किया, बार बार ही वॉज रीटेरेटेड मीन्स वो बार बार यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे थे, दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स वॉज इम्पॉर्टेंट सेफ गार्ड। मतलब वो माइनॉरिटी में थे तो उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए उनको सेपरेट सीट्स मिलना बहुत ज़रूरी था। एंड ही प्रोवाइडेड इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन, वो ऐसा क्यों कह रहे थे इसके लिए उन्होंने एक अपना तरीके से एक पॉइंट तैयार किया, उस पॉइंट को वो उन्होंने बताया। ही सेड, अब वो क्या कह रहे हैं मोहम्मद इकबाल, एंड यू नो मोहम्मद इकबाल के बारे में मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आज जो हम गाना इतने शौक़ से गाते हैं, इतने गर्व से जिस गाने को गाते हैं, वो गाना किसने लिखा था चिल्ड्रन? इट वॉज मोहम्मद इकबाल। And I hope some of you might be definitely knowing about that song, For a Change। I would love to sing this song। पूरा नहीं आता, एक लाइन तो ज़रूर गाऊंगी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। ओके, जस्ट फॉर अ चेंज चिल्ड्रन, मोनोटोन। कभी कभी आप वीडियो देख देख के बोर भी हो जाएंगे ना, ऑल्दो आई डोंट सिंग, आई एम अ वेरी बैड सिंगर। तो दैट्स वाई आई जस्ट told you। तो imagine
उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए इतना अच्छा सॉन्ग लिखा, उनको पाकिस्तान की पैरवी करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? What was the condition that he started supporting the idea of Pakistan? Now he is saying, I have no hesitation in declaring that Indian Muslims is entitled to full and free development on the lines of own culture. अपना हम डेवलप कर सकते हैं अपने कल्चर को. He said कि everybody is free for their own development. अपना डेवलपमेंट अपने तरीके से कर सकते हैं at its own lines. Community which is inspired by feelings of ill will towards other communities is low and ठीक है ignoble. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, द हाईएस्ट रिस्पेक्ट, मैं हर एक कस्टम को, लॉ को मानता हूँ और सबको बहुत रिस्पेक्ट करने वाला हूँ. एवरी रिलीजन आई रेस्पेक्ट, लेकिन इट इज़ माई टीचिंग ऑफ कुरान टू डिफेंड देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप. मैं दूसरों को बहुत बचाना चाहता हूँ, दूसरों को बहुत समझाना चाहता हूँ, उनकी सारी पॉलिसीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अपनी चीज़ों को भी, अब हमको दूसरे के धर्म को सपोर्ट करना है, लेकिन क्या हम अपने धर्म को नहीं बचाएंगे? समवेयर दे वर फीलिंग दैट देयर रिलीजन वॉज एट लॉस. देयर ग्रुप, इस लॉस को पूरा करने के लिए इन लोगों ने ये किया. And Hindu think that separate electorates are contrary to the spirit of nationalism because he understands the word nation. Nation की जब बातें कर रहे हैं, when people are talking about nation, तो Indians who are there, Hindus who are there, कांग्रेस के भी मेंबर्स हैं, दूसरी पार्टीज़ के भी मेंबर्स हैं. लेकिन अगर कोई मुस्लिम लीग का कोई बंदा है, मुस्लिम लीग है, अगर वो कांग्रेस का भी मेंबर है और किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है, तो दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल. मेन उनका अपोजिशन का कारण यही था. सो दीज वेयर द व्यूज़ ऑफ सर मोहम्मद इकबाल. यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी चिल्ड्रन, दैट वाई डू वी कॉल हिम सर. आई थिंक यू ऑल नो इट वेरी वेल. इंडिया में दो ही लोग हैं जिनके नाम के आगे सर लिखा हुआ है. नहीं, दो नहीं, 3-4 लोग हैं, बट राइट नाउ आई एम रिमेंबरिंग ओनली 2, सर मोहम्मद इकबाल एंड सर सैयद अहमद खान. ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे ना, किस तरह से, हाउ दे हैव सेपरेटेड द हिंदूज विद द मुस्लिम्स. दे ऑलवेज यूज टू गिव रेस्पेक्ट टू द मुस्लिम्स बाय बेस्टोइंग डिफरेंट टाइटल्स टू ऑन दैम. रविन्द्रनाथ टैगोर को भी दिया था, लेकिन जलियांवाला बाग के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसको वापस कर दिया. मैंने पहले भी आपसे ये चीज़ डिस्कस किया हुआ है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट द मेन थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस हियर इज दैट मोहम्मद इकबाल वाज आल्सो गिवन द नाइटहुड. यू नो इट वेरी वेल. Yeah, knighthood was the highest honor that was given in Britain to a person of honor. किसी ने भी किसी भी फील्ड में कुछ बहुत अच्छा काम किया है तो उनको, जैसे हमारे यहाँ पे परमवीर चक्र है और शौर्य चक्र है एंड ऑल दैट काइंड्स, ऑल दीज रेस्पेक्ट द ऑनर्स दैट आर बेस्टोड, उसी तरह से ब्रिटेन में दिस वाज, नाइटहुड वाज वन ऑफ द हाइएस्ट ऑनर्स दैट वाज टू बी बेस्टोड. तो इंडियंस में भी 2-3 लोगों को ये, 3-4 लोगों को ये मिला था. सर मोहम्मद, उनके नाम के आगे सर लग जाता था. मतलब यू नो, एक और कहानी याद आ रही, कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को. इट इज़ रिलेटेड टू दिस ओनली, नॉट रिलेटेड टू नेशनल मूवमेंट, बट इन जनरल आई जस्ट शेयर इट विथ. एक्चुअली इट इज़ सर मोहम्मद, बिकॉज द ब्रिटिशर्स दे हैड अ पॉलिसी, दे ऑलवेज से कि मिस्टर लगाते हैं किसी के भी नाम के आगे, मिस्टर गांधी, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू. दे डोंट कॉल एनीवन सर. उनके यहाँ पे दिस इज, इन फैक्ट टू द प्रेसिडेंट एंड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो दे हार्डली कॉल देम सर. दे कॉल देम मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर. सो दिस वे प्रेसिडेंट सर वो नहीं कहते हैं, क्योंकि सर का फुल फॉर्म है, अभी यहाँ पे मैं आपको पता नहीं वीडियो में कैसे बताऊंगी, बट सम डे आई विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू. गिविंग द प्रीफिक्स सर, किसी को अगर वो सर बुला रहे हैं तो मतलब द पर्सन इज वेरी रेस्पेक्टेबल. तो मोहम्मद इकबाल वॉज ऑल्सो गिवन दिस नाइटहुड एंड ही वॉज कॉल्ड एज सर.
and a very learned person, very honorable person in India as well as in Pakistan also. He understood the word nation to mean a lot of universal amalgamation in which कोई भी कम्युनल पीपल को बहुत ज़्यादा encouragement नहीं देना है, and those people who are serving India and who are related to India, they should be given maximum respect. Now this we have finally, this was a long chapter ना, आराम से इसलिए समझा रही थी, meaning it in detail so that you don't have any confusions. You have to understand this. Now this is the last topic that we will be starting today, the sense of collective belonging. Children, many questions are asked from this topic, and very frequently in every year one or the other question comes from this topic. Although we have very less chapters here in history also, social science में तो all over it is, but history में we have less chapters, just 4 or 5 chapters are there. But one question definitely comes from this topic, sense of collective belonging, कि ये जो एकता की शक्ति की हम बात करते हैं, when we talk of unity in integrity, and especially the kind of unity factor that started in India, how did it happen and who were the people who contributed in this? I mean contributed in bringing the Indians together. How did the Indians were brought together? इसके बारे में some details are mentioned here. अभी ये पिक्चर दिया हुआ है, you can see very well it is mentioned here, very well it is given. क्या है? How Tilak is surrounded by symbols of unity and the sacred institutions of different faith, temple, church, masjid. Just see, तिलक की यहाँ पे फोटो बनी हुई है, लेकिन इस फोटो के साथ आप देखोगे यहाँ पे भारत माता, then you will find here, मतलब all the symbols, जो मतलब यूनिटी के लिए जो भी चीज़ें इंडिया में was very clearly mentioned here. Thing that you need to note here is this line. Sorry. You have to remember this line in a sense that nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation. You have to remember this line because generally it is asked, and the question comes that how can you prove that nationalism is spread when people begin to believe that they are all part of the same nation? इसको आप prove कीजिए. Then you will have to prove this, that some unity is binding them together. मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडियंस को साथ में लेके आ रही हैं. वो क्या चीज़ें हैं? And how did we get the independence? What was the role played by the Indians? How did they manage to do that? ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें clearly mention करनी है. And nation के बारे में, the way people talk about nation, what is the concept of that nation there? We need to understand that. And just check here, it is mentioned. Just a minute. How did the people belonging to different communities, region or language groups develop a sense of collective belonging? एक बारी तो boards में children the same question was asked. बिल्कुल यही क्वेश्चन उठा के बोर्ड में पूछा था, तो आपको इसलिए that's why that makes these lines, these questions and these very important. How did the sense of collective belonging come? Sense of collective belonging mainly through the experience of united struggles. People came together. यहाँ पे I would like to share one more story with you. Story in the sense कि certain incidents are there in India that have
brought lot of changes. book में नहीं दिया रहता है, limited things are given, but then when you study history further you come to know about these things in detail. Majorly that was there is कि Britishers have introduced many things in India for their own benefit. जैसे railways introduce किया, telecommunication, a lot of ways and means जो कि विच कुड कनेक्ट पीपल करा, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया था. टेलीफोन को इन्होंने इंडियंस के लिए नहीं किया था. रेलवेज उन्होंने ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया था बिकॉज दे वांटेड टू ब्रिंग द गुड्स फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया. बिल्कुल अंदरूनी इलाकों से रेल सामान को लेके उनको सी साइड में, मतलब दे हैव टू एक्सपोर्ट द इंडियन गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज. तो उसके लिए फॉर दैट पर्पज दे हैव इंट्रोड्यूस. बट समवेयर व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट इज समवेयर इट हैज़ हेल्प द इंडियंस इन कमिंग टुगेदर. बहुत ज़्यादा से मदद मिली. एंड lot of cultural changes had happened due to which the nationalism had spread. Cultural processes. अभी कल्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है चिल्ड्रन? इन कल्चर द मेन थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इज द लैंग्वेज, द फूड, द क्लोथ. All these things together have brought the Indians close to each other. South के लोगों, पहले क्या था ना, when connectivity was not there, the people in South did not know what is happening in North. The people in North did not realize what is happening in East and West. So this way things were changing and India was moving towards a very different times where fiction was there. Fiction, what do you mean by fiction? Fiction are those stories which inspire the people to become nationalistic, to become के लिए इस तरह की कहानियाँ लिखी जाती, इमेजिनरी होती हैं. इट इज़ इमेजिनरी बट दिस वर री रिटन. फोकलोर वॉज देयर. गाँव में यू नो द रियल इंडिया दैट स्टेज इज देयर इन विलेजेस. Folklore songs were there, especially the folk songs. गाँव की जो गाने वाने होते हैं ना, बहुत सारे, बहुत लोगों को पास में लाने के, I mean it is very important to bring the people close. Then there were popular prints, symbols were there. All these played a part in the making of nationalism. Nationalistic feelings have risen just because of these small things people did not realize, but somewhere it has helped the Indians to come close to each other. Now picture based questions are there, you can see. ये चीज़ और एक चीज़ बताना चाहूँगी. Sacred institutions were there. मस्जिद देखो यहाँ पे क्या है ना, ये अच्छा आजकल पिक्चर स्टडीज़ भी है. All the symbols of India are you will find here. ये यहाँ पे ये देखो, look at this, ठीक है, look at this, look at this. मीन्स यहाँ पे क्या एक्सप्लेन क्या करने की कोशिश की जा रही है. जस्ट चेक आउट हियर चिल्ड्रन. एक पहले के ज़माने में कहावत था, पहले क्या आज भी हम कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई. तो ऑन व्हाट बेसिस डू वी से कि एवरीबडी इज़ क्लोज टू ईच अदर एंड एवरीबडी इज़ ब्रदरन? तो सेंट्रल फिगर में बाल गंगाधर तिलक हैं. तिलक वॉज अ वेरी एमिनेंट लीडर इन कांग्रेस एंड ब्रिंगिंग द इंडियंस क्लोज टू ईच अदर ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So this kind of portraits were very important during the nationalistic struggles. Portrait बनाया जाता था. All these people who are very dedicated towards cause and very independence in India. So here I am stopping children. Tomorrow we will be in the next video. We will be completing the chapter. And further we'll be discussing question and answers, and then we will be talking about
the practices that were very prominent in the ancient India, and especially during the time of nationalistic movement. Okay, children. Thank you, children, and all the best to you.